Good to have you. And then from Dil Chata Hai to Dawn, from Gully Boy to 120 Bahadur now. His stories have defined what modern Indian cinema looks and sounds like. And he continues to back stories that define generation. Yours, mine, pretty much everyone in the country. The force behind Excel Entertainment. Please give it up for Mr. Ritesh Sidhwani. One more gentleman, unfortunately, he couldn't join us today. The founder of Trigger Happy Studios, Amit Chandra. But I have to pose the first question to you, Rezi. एक ऐसा चैलेंज दैट इज मॉन्यूमेंटल, एक ऐसी कहानी जिसके बारे में हमने हिस्ट्री की किताबों में भी नहीं पढ़ा। 120 बहादुर सिपाही और उनके सामने 3000 दुश्मन। जब आपने इस कहानी को सुना, व्हाट मेड यू फील कि ये सिर्फ इतिहास नहीं है, इट्स अ स्टोरी दैट डिजर्व्स टू लिव ऑन स्क्रीन? First heard the story when I was a kid. My father was in the army, and my brother, when I became a filmmaker, told me the story. And when I heard it, I had to make it. And then I tried to make it for another 5 years. Nothing happened. Then I met these boys, and it happened. So it's a labor of love. I hope people enjoy it. Ritesh, Excel Entertainment, our favorite, some of the most iconic stories that have lived in cinematic space, each one redefining what cinema feels and sounds like. लेकिन ये कहानी, it's about truth, it's about valor, it's about bravery. लेकिन वो जो real है, वो जो सच है, how do you manage to make it as truthful when it comes to the real space? Good evening. I think it is a bit delicate, right? When you're trying to आप एक कहानी के जो real है and you're trying to bring it to a cinematic experience. So I think cinema has its own rhythm, its own structure. So I think it becomes delicate. But then you have such fine writers like Rajiv and Sumit who did the dialogues, and then you have Rezi, the captain of the ship. So I think it's turned out well. I think what we've managed to do is keeping that story authentic, because it was actually a story about their courage, the emotion, about what these 120 gentlemen did when they went into knowing that they were actually walking to into their death. So I think it is very delicate, and all of them together have managed to bring it to life and kept it engaging, because the cinema, it has to have an immersive and engaging experience, and I think we managed, and hopefully it'll resonate. I think I can speak for everyone here in this place that हमने teaser देखा, we started off with goosebumps. आप सबसे मिलेंगे, आप सबसे उनकी कहानियां सुनेंगे. Thank you so much for bringing this story on our screens on the 21st of November. Thank you so much, gentlemen. Thank you. You hear this word, right? War, जंग, उसके मायने जो है वो हर किसी के लिए अलग होते हैं. किसी के लिए एक हेडलाइन होती है, किसी के लिए it's history. लेकिन कुछ लोगों के लिए it's a personal battle. जब एक जवान सीमा पर खड़ा होता है, उसके पीछे एक पूरा देश होता है, करोड़ों लोग, करोड़ों दुआएं, और ये पहला नजरिया है, the first perspective जो हम सबका होता है, देश के लोगों का. उन आंखों का जो हर रोज किसी यूनिफॉर्म वाले को देखकर कहती हैं कि आप खड़े हैं तो हम आजाद हैं. और इसी एहसास को आवाज दी है एक ऐसे गाने ने जिसमें मां, मिट्टी और देश एक हो जाते हैं. कंपोज्ड बाय म्यूजिकल मैवरिक अमित त्रिवेदी, who's sitting right there. Wait for it. लव्स लिखे हैं उस जीनियस ने जिनके लव्स हिंदुस्तान की रूह को पिछले 4 दशकों से लिखते आ रहे हैं. वन एंड ओनली जावेद अख्तर. And an आवाज that can even make silence feel musical. Shreya Ghoshal. Unfortunately, Shreya हमारे साथ यहाँ नहीं है, but she sends a very warm message for everyone. 120 बहादुर की पूरी टीम को मेरी तरफ से थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ अ फिल्म, एन आइकॉनिक फिल्म विच विल बी रिमेंबर्ड फॉरएवर, जो एक बहुत ही खूबसूरत स्टोरी बताती है, रियल लाइफ स्टोरी, और वीरता को इस तरह से प्रदर्शित किया गया इस फिल्म में. उसके लिए बेहद बेहद दिल से थैंक यू जाता है टू फरहान अख्तर, राशि एंड ऑल द मेकर्स ऑफ द फिल्म एक्सेल एंटरटेनमेंट. एंड बिग थैंक यू टू अमित त्रिवेदी सर एंड जावेद सर फॉर गिविंग मी अ सॉन्ग. शायद मेरे जीवन का सबसे अहम सॉन्ग है, सबसे इम्पोर्टेंट गाना रहेगा. मुझे कभी भी अब मौका नहीं मिला कि मैं अपने जज्बात धरती माँ के लिए बयां कर सकूं किसी गाने के द्वारा, और ये
ये पर्सपेक्टिव ही अलग है। धरती माँ अपने जवान के लिए ये गा रहे हैं, तो ये डेफिनेटली ऐसा गाना है, ऐसी पिक्चर है जो हर दिलों को छुएगा। और वीरता का ऐसा एक मैसेज है और ऐसा एक स्टोरी है जो लोगों को जानना बहुत जरूरी है। सो आई एम वेरी वेरी फॉर्चुनेट टू बी पार्ट ऑफ 120 बहादुर, और पूरी टीम को मेरे दिल से थैंक यू। आई एम वेरी वेरी सॉरी दैट आई कुडंट मेक इट टुडे बिकॉज ऑफ सम प्रायर कमिटमेंट्स। आई एम मिसिंग दिस म्यूजिक लॉन्च वेरी बैडली, but my best wishes to the whole album, and all the listeners must watch and listen to the album.
the man who has woven this magic. Can I please request Amit Trivedi to come join me? Sir? Sir, one of my favorite songs already, and I think everyone here would agree. Amit, गाना हमने सुना, बट मैं जरा तरीके की बात करना चाहता हूँ, क्योंकि अमूमन पहले धुन बनती है, फिर जो लेखक होते हैं वो आके उस पर शब्द लिखते हैं, लेकिन यहाँ शब्द लिखे हैं जावेद साहब ने. तो आपने जब धुन बनाई और आपने पढ़े वो शब्द, वो लफ्ज जो जावेद साहब ने लिखे हैं, कंपोजर के अंदर का फैन बॉय जो है वो जाग जाता है. गुड इवनिंग एवरीबॉडी. मैंने जावेद सर के साथ पहले भी काम किया हुआ है, और तभी मैं फैन बॉय था जब मैंने पहली बार काम किया था. हर बार मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिलता है ना. फर्स्ट टाइम आई फैन बॉय और नाउ वाज फैन बॉय, एंड व्हेन ही राइट्स ऑन द ट्यून्स दैट आई गिव, एंड व्हेन ही राइट्स द मैजिक हैपेंस आफ्टर दैट, बिकॉज तब तक इट्स ओनली हाफ व्हाटएवर आई हैव कंपोज्ड. आई डोंट नो, आई एम अनश्योर ठीक है कि नहीं. When the words come in and when he writes so beautifully, it's all complete and it feels magic. And it's a pleasure, absolute pleasure to always. I love him. I'm genuinely fond of him. I really love him. I think we all do. जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जिनकी हम बात कर रहे हैं, it gives me immense pleasure. It's a moment of pride to call the legend Javed Akhtar. Sir, please, आइए. Any room, always a standing ovation, sir. Thank you so much. जावेद साहब, it's fascinating. और डांटिएगा मत, सोच के मैंने सवाल लिखा है कि आपने कभी यूनिफॉर्म नहीं पहनी, you never stood on the border. लेकिन जब आप लिखते हैं, whether it is a संदेशे आते हैं, whether it is the title song of लक्ष्य, या ये गाना, एक और गाना है which everyone will get to experience. जावेद साहब, ऐसा लगता है कि आपने फौजियों के बीच वक्त बिताया है. वो जो महसूस कर रहे हैं, वो आप कैसे महसूस कर लेते हैं? दोनों ही बातें हैं, कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ इमेजिनेशन है. आई हैव स्पेंट सम टाइम विद आर्मी पीपल व्हेन आई इंटेंडेड टू, while the Operation Vijay was on, I had gone there. The battle was on. And after 1 year, General Arjun Ray invited me the first anniversary of Operation Vijay. And Taras, which is the second most cold inhabitable place in the world after Siberia, that is where they have made a Shaheed Samarak. And only 2 people addressed the army that day, Arjun Ray and me. And he was kind enough to give me all the facilities to go to different regiments and stay with them for a couple of days and so on. And I discovered that it's another world. We only know army by their uniforms. It is a complete culture. It is a complete way of living. They are another people and they are exceptional. There is so much to learn from them. So then I wrote Lakshya and again went back to the officers and seniors, got it corrected, the vocabulary, the expression and so on and so forth. So that was a big exposure. But I think every Indian has great respect for Indian Army. It is perhaps, I won't be exaggerating if I say, that today Indian Army is the most respected institution in this country. The most trustworthy. We respect our army, which is a fact. So, I mean, they were kind enough to give me so much time. And then when this offer came for writing lyrics for this, so obviously that experience which I got during Rush came handy to me. ये जो 2 फिल्मों की हम बात कर रहे हैं, एक लक्ष्य जो 2004 में आई थी एंड अब 2025 में 21 साल बाद 120 बहादुर, दोनों में एक बात समान है, दोनों में फरहान थे. उस फिल्म में बतौर डायरेक्टर, इस फिल्म में बतौर एक्टर. आप ही के लिखे हुए शब्द, एज अ फादर, एज अ राइटर, व्हेन यू सी
your son living those emotions perfectly. जी अब थोड़ा नेपोटिज्म तो का होता The only one with a shy smile was your son there. It's nepotism in reverse. थैंक यू सो मच, क्योंकि इस गाने से एटलीस्ट हमें ये समझ आया है, इसके जरिए समझ आया है दैट ये धरती सिर्फ जमीन नहीं होती है, ये माँ भी होती है. थैंक यू सो मच जावेद साहब, थैंक यू सो मच अमित, एंड थैंक यू सो मच टू श्रेया घोषाल. बहुत बहुत शुक्रिया. I may or may not get this chance again, so I must use it. And I must congratulate Ritesh, the director, Farhan. I've seen the film and I am their worst critic. Generally, they are not happy with me. But I must accept that they have made a very good film. Then, Thank you so much, Jaवेद sir. Thank you so much. Please take your seats. हम नजरिए की बात कर रहे हैं. हमने अभी माँ की पुकार सुनी और अब वक्त है उस धुन का जिसमें वीरता है, विरासत है. ये अगला गाना एक वॉर क्राई है, एक पुकार जो हर सिपाही के दिल से उठती है और हर देशवासी के दिल में बस जाती है. दादा किशन की जय. ये इतनी ही पावर में लेके आ सकता हूं क्योंकि जब बात होती है पावर, पैशन और पेट्रियोटिज्म की, हम बार बार इस आवाज को सुनते हुए आए हैं क्योंकि ये आवाज गूंजती है वन एंड ओनली सुखविंदर सिंह. उनके साथ हैं इंडिया के म्यूजिकल स्टोरी टेलर्स. वन हाफ इज हियर, द अदर हाफ इज ऑन हिज वे. वी हैव सुलेमान, तो हर कॉम्पोजिशन को एक कहानी बना देते हैं. एंड द लिरिक्स वंस अगेन पेन बाय समवन हु पुट इट सो ब्यूटीफुली, जावेद साहब अगेन. तो तैयार हो जाइए फॉर परफॉर्मेंस दैट सेलिब्रेट्स फेथ, valor and legacy. Presenting Dada Kishan ki jai.
You could be louder, guys. एक बार सब मिलकर बोल सकते हैं जाना की संकी। इसे कहते हैं पावर हाउस, जिंदा दिली। सुखी पाजी, सलीम भाई, गुड टू हैव यू। सुलेमान भाई, सलीम भाई अभी रास्ते में हैं, किसी ने पता लगा कहाँ, बैंड्रा से ही आ रहे हैं ना। सुखी पाजी, वो पैशन जो है वो साफ झलकता है जब आप गाते हैं। इसमें सबका कंट्रीब्यूशन है। मुझे अभी भी याद है एक ऐसा नजारा देखने को मिला जो अक्सर मिलता है। जब गाना खत्म हुआ, वॉइस रिकॉर्डिंग गाना कंप्लीट हुआ, फिर एक छोटी सी डिमांड आई और जावेद साहब को रिक्वेस्ट किया कि बिगनिंग में कुछ ला सकते हैं क्या, कुछ साकी कहते हैं उसे, कुछ शेर, कुछ जज्बा। मेरे ख्याल से लेस देन 1 मिनट उन्होंने लाके लिख के सामने दे दिया। फिर मैं वहीं पे खड़े होके गाया। सलीम सुलेमान, आपने भी कहा ना सलीम, तो आप सलीम मेरे को कंसीडर कर सकते हैं। क्या बात है ना? तो सबका कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि मैं जो समझता हूं कि हर गाने का मैं तीसरा किरदार हूं। I'm a third person of तीसरा नहीं भाई, पहला किरदार। नहीं, आवाज तो आपकी निकलती है सबसे पहले। लिखा जाता है फिर उसे बनाया जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। होता तो मैं आखिरी किरदार हूं, पर तीसरा कैरेक्टर हूं, पर मेरी कोशिश होती है कि मैं लास्ट किरदार हूं। कि बहुत सारी कंट्रीब्यूशन है, कितना डिजाइन करना उसकी पोइट्री, तब जाके फिर वो हमारी टर्न आती है किसी भी सिंगर की जो अच्छा गाते हैं। आपके लिए ज्यादा मुश्किल क्या था, एनर्जी को संभालना या उस इमोशन को बरकरार रखना गाने में? अगर मुश्किल होता तो मैं गा ही ना पाता। मुश्किल वाला काम। देखिए सुखी पाजी को मैं एक बोल दूं, ये जब भी स्टेज पे माइक पे जाते हैं, he has energy, it's power and energy, और एक रूहदारी है जो बिल्ट इन है, वो निकालनी नहीं पड़ती, वो ऐसे स्विच ऑन करने की जरूरत भी नहीं है, वो पहुंच गए, it's on, and so the emotion comes from within, the power he has already. All we needed was beautiful words which Javed Saab has beautifully written, and that was it. अगर इस गाने को सिर्फ कोई पढ़े और सोचे कि ये गाना किसको गाना चाहिए, that's the man, Sukhwinder Singh, and I don't think there is any other voice that would do justice to this song. इतना भी तारीफ मत करो, बाकी के लोग खिलाफ हो रहे हैं। मैं एक बार इस कॉम्पोजिशन की बात करना चाहता हूँ, क्योंकि हम 21 तारीख का इंतजार कर रहे हैं जब हम फिल्म में ये गाना जो है वो देख पाएंगे। लेकिन एक बात क्लियर है, रणभूमि का जोश, वीरों का वो बलिदान, जब आप दोनों कंपोज करने बैठे, स्लिम एंड यू, वो दर्द और गर्व दोनों को सुर में बंधे रखने के लिए कितनी मुश्किल थी? ये कॉम्पोजिशन एक बात है, और उसके ऊपर जो इमोशन जो आता है वो लिरिक्स से आता है। एंड जावेद साहब हैज डन, you can hear the magic of the lyrics and the emotion of the lyrics
coming into the veerta of the celebration of the song and the क्या बोलते हैं उसको, the bravery जो music के through से आ रही है, and the voice that creates the power behind the music. तो मैं difficult नहीं कहूँगा, challenging शायद है थोड़ा सा, मगर when you have maestros like Javed Saab writing such beautiful lyrics, it becomes very easy. You spoke about power, and now it's time to meet the heart and soul of this film, a name that never takes the easy route. Her role, her film, एक नया challenge. He's walked the road less traveled, always chasing, never comfort. Ladies and gentlemen, Farhan Akhtar. Farhan, we have heard two songs, लेकिन जब भी हम बात करते हैं courage की, and look at all the films that you've done, courage वाली फिल्म, चाहे वो लक्ष्य हो, चाहे वो भाग मिल्खा भाग हो, या अब 120 बहादुर, it always feels more than a role. Is it a reflection of what you're feeling उन वीरों के बारे में जब आप ये रोल प्ले कर रहे थे? गुड इवनिंग. हाँ, ये बात तो बिल्कुल जाहिर है, जब ऐसी कहानी मिलती है तो there is a fire that gets lit inside the heart and the mind. I want to first, this is the release of the music, so I want to firstly just say thank you to Amit, to Salim Suleiman, and to these three wonderful boys, Amjad, Nadeem and Abid. You'll meet them very, very soon, because they really have captured the mood of the film, of the events in the film. जो जज्बा होता है फिल्म का, जो भावनाएं होते हैं एक सिपाही की, they've captured it very, very well. और मेरा बस ये मानना है यार कि honestly, as a director or as an actor or as producers, you get very, very few opportunities to do something that is way beyond you, that is way bigger than you. Right. You know, I feel very blessed that these opportunities have come in the last 25 years of making movies. They've come periodically, you know, in gaps of maybe 3 or 4 years. So I don't want to jinx it. You know, I just want to keep working hard and keep inspiring people like Rezi to make movies, and that when they write scripts like this, you know, that they know that there's somebody out there, you know, who will give his heart and soul to make sure that it's put together, made well. I want to also say lots of love to my entire cast. Most of them, they are sitting here. Rashi, who's sitting there. Really guys, it was impossible to do this without you all. मतलब जो camaraderie आप देखेंगे पर्दे पे, it's actually there, वो आपको यहाँ पर दिख भी रही है. It was impossible. We are truly a Paltan in the real sense. So thank you very much. सुकी पाजी ने वहाँ से गाना शुरू किया, and visuals अभी हम इंतजार कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि 21 तारीख को. This is the war cry. This is the spirit of the film. Do you think it captures the essence of this story perfectly? यार अभी सुकी बाजी अपनी आवाज में जो भी कहेंगे will capture the essence of it. जो भी आप कहेंगे. But seriously, दादा किशन की जय is the battle cry of Charlie Company, who are part of 13 Kumau, and that is praise be to Lord Krishna, right? So that's what it was, and that is the right feeling and the right blessing with which we should start this journey. Absolutely. Suki Paji, Sulaiman Bhai, Farhan, I think you said what needed to be told. Dada Kishan ki jai, गाना आपने अभी सुना, जुनून जगाया है. What a powerful moment. A time for a picture with the three of you together. सुकी पाजी, आप कुछ कहना चाहते थे? मैं जावेद साहब आ जाते अच्छा था. हाँ जी. अच्छा. नहीं, पर मैंने सलीम तो नाम अपना रख लिया, जावेद साहब नहीं रख सकता.
Thank you, Javed Saab. Thank you, Suki Baji, Suleiman, Amit. It's a little discussion. हम उन नजरियों के बारे में बात कर रहे थे. The round of love, loss, and loyalty. तू आ गई तो जब और तो सब है जाना क्या है सोनी के तुझे खो गया है सोनी रंगों में सो पास जब A visual experience, it feels like a memory is unfolding right in front of us. A huge round of applause for our singers Javed Ali and Ashish Kaur, and of course our composers Amjad, Nadeem and Amir. बहुत बहुत शुक्रिया, खूबसूरत गाना आपने बनाया है. लेकिन मैं पहला सवाल शायद कंपोजर से ही पूछ लेता हूँ. यहाँ वो दुआ भी है और साथ में वॉर का वो बैकड्रॉप भी. जब आप इस गाने को बना रहे थे, उसको बैलेंस कैसे किया आप लोगों ने? क्योंकि वो साफ छलकता है इसमें. देखिए, इट्स अ टीम वर्क. बेसिकली जब एक ट्यून हम बनाते हैं तो अंदर हमारे क्रू होती है जो सिचुएशन को फील कर रही होती है. हम बहुत सोचते हैं, समझते हैं, फिर जाके ट्यून बनाते हैं. लेकिन उस जिस्म में रूह देने का काम होता है शायर का, लिरिक्स राइटर का. वो काम किया है जावेद साहब ने, कि जो हमारी आवाज़ है धुन की, वो जावेद साहब ने ही दी है. थैंक यू सो मच जावेद साहब. आपने 4 चांद लगा दिए हमारी एक छोटी सी इतना खूबसूरत बना दिया. थैंक यू सो मच. I'd like to thank Javed Bhai, Ashish Kaur for giving heart and soul to the song. Entire Excel team, Z Music Company, thank you so much for having us on. Thank you.
गुड इवनिंग एवरीवन। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, आप सब हमारे साथ मिलके बोलिए, दादा किशन की जय, भारत माता की। थैंक यू सो मच। थैंक यू जावेद भाई, आशीष, आप जब गाते हैं तो ऐसा लगता है कि प्यार भी इबादत बन गई है। नैनेरा लोभी में एक दर्द है दुआ है, जैसे हम जिक्र कर रहे थे, जब आपने गाना रिकॉर्ड किया तो आपको लगा कि ये एक मोहब्बत का गाना है या फिर शायद एक अलविदा, एक पत्नी का उस जवान के लिए जो सरहद पे जा रहा है? जी जावेद भाई। सबसे पहले गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। जब ये गाना, जब इस गाने के ट्यून और इसके लिरिक्स मैंने सुने, और जब मैंने ये सुना कि ये गाना जावेद साहब ने लिखा है, तो सबसे पहली बात तो एक अजीब सी जिम्मेदारी कांधों पे आ जाती है एक सिंगर के लिए, कि जावेद साहब के जो लिरिक्स हैं उनको वो कितना जस्टिफाई कर पाएगा, एक कर पाएगा। मुझे जब भी मौका मिलता है उनके साथ काम करने का, जुड़ने का उनके साथ, मैं एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और एक अपॉर्चुनिटी महसूस करता हूँ, और इस गाने में भी मैंने वही की। और आप यकीन मानिए, ये मुखड़ा आता है, अब मुखड़े में वो एक हीरोइज्म भी दिखना चाहिए, रोमांस भी दिखना चाहिए, और हीरो की एंट्री, ये तीन चीज़ें एक साथ दिखनी चाहिए। तो मेरे पे बड़ी जिम्मेदारी थी, और लाइंस भी मेरी कुछ 3-4 लाइंस हैं, तो उसमें बेस्ट करना है। तो ये मैंने पूरी कोशिश करी, और मेरे दिमाग में ये था कि ये गाना फरहान सर सुनेंगे, जावेद साहब सुनेंगे, तो उनको लगना चाहिए कि ना ये करेक्ट जस्टिफाई किया है। मैंने कोशिश पूरी की है। अब मैं जावेद साहब का चेहरा देख रहा हूँ। फरहान सर, थैंक यू सो मच। मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं सच्ची जेन्युइनली बता रहा हूँ। मैं जो भी आपकी फिल्में आती हैं, या मुझे दूसरी बार जुड़ने का आपसे मौका मिल रहा है, वज़ीर में मैंने गाया था उनके लिए, और मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि इस गाने के ज़रिए दोबारा से आपसे मिलने का, आपके साथ काम करने का, एंड ऑफ कोर्स जावेद साहब के साथ जुड़ने का मौका मिला मुझे। एंड ऑफ कोर्स अमजद, नदीम, आमिर, दे आर लाइक माई यंगर ब्रदर, और बहुत टैलेंटेड हैं और बहुत पैशनेट होके काम करते हैं। और कोई भी सिंगर को जब कंपोजर एक फ्रीडम देता है कि आप इसमें करें, जैसे मैंने इसमें आलाप गाया है, तो वो आलाप ऐसे ही मैं रैंडमली गा लिया, तो वो आलाप इन्होंने इतना बोले कि ये रखेंगे आलाप इसमें जो फर्स्ट म्यूजिक में आता है। जब ऐसी कोई फ्रीडम देता है ना कंपोजर, तो सिंगर ऐसा दिल करता है कि अपना कलेजा निकाल के उस गाने में रख दे, और मैंने पूरी कोशिश की। ऑल द वेरी बेस्ट अमजद, नदीम, आमिर, एंड ऑफ कोर्स असीस। ये हमारा पहला गाना है साथ में, और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आपके साथ गाने का मौका मिला। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और गाने के बारे में बताने से पहले मैं एक अपनी ज़िंदगी का एक छोटा सा वाक्य आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। जब लक्ष्य मूवी आई थी तो मैं एक टीनेजर थी, और मैं भी अपनी ज़िंदगी में सोच रही थी कि मुझे कहाँ पहुँचना है, क्या करना है। तो आई थिंक मेरी तरह बहुत सारे टीनेजर्स को एक रास्ता मिला था आफ्टर वॉचिंग दैट मूवी। और मतलब एक एम होना चाहिए, एक मोटिवेशन होता है एक अपनी खुद की ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का। वो उस मूवी से आई थिंक बहुत सब लोगों को बहुत वो एक दिशा मिली थी, एंड आई एम वन ऑफ दोज। एंड सो दिस इज़ अ फुल सर्कल फॉर मी, बिकॉज फरहान सर की मूवी थी, और आज मैं जिस मूवी से जुड़ी हूँ वो भी आपकी मूवी है, एंड इट्स एन आर्मी बैकग्राउंड मूवी, सो वेरी स्पेशल फॉर मी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग me on the song Amjad, Nadeem and Amir. Thank you for giving me this opportunity. और बचपन से जब से मैंने सोचा था कि मैं सिंगर बनना चाहूँगी, तब से मैं जावेद अख्तर साहब का लिखा हुआ एक गाना गाना चाहती थी, और आज वो मुझे मिल गया है। So this is a dream come true. I think अब मुझे लगता है मेरा सिंगर बनना सफल हो गया है, तो अब मैं आराम से अपनी ज़िंदगी में ऐश कर सकती हूँ। So thank you sir, thank you. I होप मैंने आपके लफ्ज़ों को सही से निभाया है। मैं बहुत चाहती थी कि सर डबिंग में आ जाए, मैं उनको पहली बार देखूंगी। आज वो मेरा सपना उनको देखने का भी पूरा हो गया है।
सो थैंक यू सो मच। और इस गाने को गाने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। जैसे आपने कहा कि गाना इबादत है, मेरे लिए इबादत ही है गाना। और कोई भी गाना हो, चाहे वो रोमांटिक नंबर हो या वो डांस नंबर हो, मेरे लिए हमेशा इबादत वाला फील ही होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जितनी दिल से प्यार से मैंने ये गाना गाया है, आप सबके दिलों तक पहुँचे और वो इमोशन आपको भी फील हो जब गाने में मुझे फील हुआ। और थैंक यू सर, सच में हमारा पहला गाना है और मैं चाहूँगी कि इसके बाद बहुत सारे गाने हमारे साथ में आए। थैंक यू सो मच, थैंक यू एक्सेल टीम, थैंक यू फरहान सर, जावेद अख्तर साहब, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ। थैंक यू। A lot of warmth here on this stage. मैं उन चंद खुशकिस्मत लोगों में से हूँ जिन्होंने इस गाने को देखा है, exactly where it comes in the film, और शायद एक पत्नी क्या महसूस करती हैं उन भावनाओं को हम समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जिन्होंने इस किरदार को निभाया है वो शायद हमें कुछ बेहतर बता सकें। प्लीज वेलकम द इनक्रेडिबल राशि। Nervous? Yes. Okay. I'll keep it rather simple. किरदार के बारे में बता चुका हूं, लेकिन एक जवान जो सरहद पे लड़ने जा रहा है, उनकी पत्नी सिर्फ प्यार नहीं, हिम्मत और बलिदान भी समझती है। जब आप ये रोल प्ले कर रही थी, क्या वो कहानी सिर्फ समझने की थी या आप उसे फील कर रही थी, और व्हाट अ वाइफ ऑफ अ सोल्जर एंड्स अप फीलिंग? सभी को मेरा नमस्कार। थोड़ी सी नर्वस हूँ। आई थिंक मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि आई गॉट टू बी अ पार्ट ऑफ 120 बहादुर। देखिए, आर्मी वाइफ का होना बहुत, आई मीन टू बी इन दैट रोल इन इटसेल्फ इज़ अ चैलेंज। और मेरे लिए आसान नहीं था, क्योंकि जिस तरह सीन्स लिखे गए हैं, जिस डेप्थ के साथ लिखे गए हैं, every time I was in a scene, I got very emotional. And I have to thank Farhan sir for being such a good support. उनके बिना मैं शायद ये नहीं कर पाती। And Rezi sir, of course, the captain of our ship. इस फिल्म में बहुत ऐसे सीन हैं, जैसे मैंने कहा, जहाँ मैं इमोशनल हुई, and it did test me as an actor also. And I think I love being part of films that test me as an actor. Coming back to playing an army wife, मैं शब्दों में तो नहीं कह पाऊंगी। I think आपको फिल्म देखनी होगी। आंखों ही आंखों में आप समझ जाएंगे कि उनकी फीलिंग क्या है, और एक अंडर करंट ऑफ लॉस जैसी फीलिंग रही थ्रू आउट। क्योंकि आई थिंक एक आर्मी वाइफ वो समझौता कर लेती है उस सच्चाई से कि her loved one might not come back, you know, and that's a very heavy feeling to live with. तो मैंने पूरी कोशिश करी है to give my best, and I hope आप सभी को पसंद आए। Thank you. Thank you all of you truly, क्योंकि शायद ये गाना रोमांटिक सॉन्ग तो है, लेकिन it's also a reminder of what a soldier leaves behind when he walks towards a situation as grave as war. Thank you so much, Javed bhai, Asis, Amjad, Nadeem, Amir, and of course Rashi. Thank you so much, ladies and gentlemen. A photo opportunity for our members of the press. I'll take the mics, as many as I can. Thank you. A picture, all of you, ek saath. Thank you so much. And Farhan, requesting him as well to join. दो नजरिए देख चुके हैं, सुन चुके हैं, अब वक्त है उस तीसरे नजरिए का, the third perspective. We've seen the emotion of love, we felt the strength of those who wait, but now it's time to step into the heartbeat of every soldier's life, brotherhood.
द काइंड ऑफ बॉन्ड जो खून से नहीं पर कसम से बनता है, जहां एक जवान दूसरे के लिए अपनी जान रख देता है बिना सोचे बिना पूछे. This is the life of a soldier. And speaking of soldiers in the film, there's a unit that carries this emotion like a badge of honor. The Charlie Company, a brotherhood that is forged in battle, bound by loyalty and led by the man who defined courage himself, Major Shaitan Singh Bhatti Paramveer Chakra. इस मोमेंट का हम सब ने इंतजार किया है. यादें, बलिदान, वीर रस, द हार्ट ऑफ 120 बहादुर, इसे कंपोज किया है इस म्यूजिशियन अमित त्रिवेदी ने, लिखा है जावेद साहब ने और गाया है 4 लाजवाब आवाजों ने. शुभदीप दास चौधरी, चिराग कोटवाल, ओबम तांगू एंड उत्कर्ष वानखेड़े. Presenting the soul, the spirit, the salute of 120 बहादुर याद आते हैं. नजर से प्यार जो याद आते हैं, लिपट के हमको मैया होली थी जाओ सफरिया, भैया याद आते हैं. वो मस्ती की रातें थे, वो मस्ती को कब था वो प्यार के सच्चे वो तेरी हो, वो एक पुराने यार के किस्मत तुमको जाने जाने ये नाम हो जब हम से अपने समझ से हमारे जो याद Ladies and gentlemen, the entire team of 120 Bahadur. This is an army of sheer talent. Farhan, Rezi, Ritesh, Charlie Company, Amit, Javed Saab, Sulaiman Bhai. And I also want to ask a question to the 3 singers who are here. Unfortunately, Obum हमारे साथ यहाँ नहीं है. शुभदीप, उत्कर्ष, चिराग,
4 अलग अलग आवाजें हैं, लेकिन जब हम गाना सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि एक सोल गा रही है। क्या इंटेंशन हमेशा से वही थी? डिड यू चेंज एनीथिंग व्हेन यू वर सिंगिंग द सॉन्ग ताकि 4 जो है वो एक लगे? पहली बात तो जब हमें पता लगा था कि जावेद साहब ने लिखा है, तो वी वर लाइक सो ओवरवेल्म्ड कि इस गाने को निभाना कितना एक बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस होती है हम लोगों की, हम अपना बेस्ट दें। जब हमने सुना, जैसे सर ने कंपोज किया, अमित त्रिवेदी सर ने कंपोज किया, तो वी वर सो इनटू इट कि वो अपने आप ही एक क्या बोलते हैं उसको, एक ऑरा बन जाता है और एक ऐसी इन्वायरमेंट बन गया कि हम लोगों ने अपना सोल डाल दिया उसमें, और वो मतलब एकजुटता से हमने गाया और लाइक वो आप सब सामने मतलब हमने प्रेजेंट किया। तो ऑल थैंक्स टू अमित त्रिवेदी सर और जावेद सर, बहुत बहुत बड़े फैन हैं हम आपके, और लाइक बहुत बहुत हम ग्रेटफुल हैं कि हमें इस मूवी में फरहान सर की मूवी में जो है गाने का मौका मिला। सो थैंक यू एवरीवन। शुभदीप, मेरे लिए तो मेरे पैर कब कांप रहे हैं, मेरी हालत बहुत खराब है, क्योंकि मैं आज ही सुबह सर कनाडा से भाग के आ गया हूँ और अभी फिर से जा रहा हूँ कनाडा। ये मेरे लाइफ का पता नहीं ऐसा मोमेंट है कि मैं अपने ग्रेवयार्ड तक लेके जाने वाला हूँ। मैं आपके पैर छूना चाहता हूँ। नहीं, very big day for me, and I cannot say thank you so much sir for always supporting me, and it means like world for me. Thank you sir. एक बचे हुए आप भी कुछ जोड़ना चाहेंगे? एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था कि कहाँ जाने वाला है गाना है, बस मैं गा दिया और मुझे आज पता चला कि आ रहा है, तो मैं बहुत फॉर्चुनेट मान रहा हूँ, और शायद गाने में ही इतना पावर है कि वो सब कुछ जो सोल है वो एक साथ कलेक्ट होके आप लोगों तक पहुंच रहा है। तो भाई आप परफेक्ट हो, क्योंकि आर्मी में भी यही होता है, ऑर्डर दिए जाएं तो सिर्फ फॉलो करो। जो सरहद पे आज लड़ रहे हैं, जो सरहद पे 1962 में लड़े, शायद हम उनका नाम नहीं जानते हैं, लेकिन वो जो हमारे लिए करते हैं वो हमें आजादी देते हैं। वी नाउ आर मीटिंग मेजर शैतान सिंह भाटी परमवीर चक्र यूनिट, द चार्ली कंपनी। बहुत जरूरी है कि एक बार जिन्हें आपने स्क्रीन पे निभाया है उनके बारे में हम जान सकें। इफ यू कुड जस्ट, कैन आई हैव अ माइक्रोफोन स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम दिस साइड, राइट फ्रॉम यू इजाज, फ्रॉम दिस साइड इफ यू कैन जस्ट स्टार्ट, बताएं। नमस्ते, मैं उजाज खान और मैं इन 120 बहादुरों का कमांडिंग ऑफिसर का किरदार प्ले करूंगा। हाय, मैं हूं आशुतोष और आई एम वेरी ऑनर्ड एंड आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल कि मुझे स्वर्गीय धर्मपाल दाहिया साहब का किरदार निभाने का मौका मिला है। थैंक यू। नमस्कार सभी को, मंच पर विराजमान जितने भी हमारे अतिथिगण हैं, बड़े मैं कांप जाता हूँ। फिल्म में डायलॉग वाला मसला अलग होता है, लेकिन मैं खुश नसीब हूँ कि ये मैं मंच शेयर कर रहा हूँ आदरणीय श्री जावेद साहब के साथ में, फरहान अख्तर साहब, पूरी टीम साथ में है। मेरा नाम ब्रजेश करणवाल है और मैंने जयराम काका का किरदार किया। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। सो मैं साहिब है मेरा नाम और मैं जो किरदार प्ले कर रहा हूँ, तो मैं जो किरदार प्ले कर रहा हूँ उसका नाम नन्हे है, और इट्स एन एब्सोल्यूट ऑनर टू बी हियर टुडे। आई एम जस्ट ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू टू द टीम ऑफ एक्स। हेलो, मेरा नाम अतुल सिंह है। मैं सिपाही निहाल सिंह का रोल प्ले कर रहा हूँ, LMG ऑपरेटर, जो अभी भी सिर्फ। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू एक्सेलेंट एंटरटेनमेंट। थैंक यू रेजी सर, थैंक यू अनमोल सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम स्पर्श वालिया है और मैं फिल्म में रेडियो ऑपरेटर श्री रामचंद्र यादव जी का किरदार निभा रहा हूँ। वो नौजवान जो सरहद पर ये सोच कर गए थे कि देश की सेवा करने का मौका मिला है, उस कंपनी का हिस्सा बनने का मौका मिला है जिसके कमांडर मेजर शैतान सिंह हैं, लेकिन उस वक्त उन्हें नहीं पता था कि वो इतिहास के इतने अहम पन्ने का हिस्सा बनने जा रहे हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। Hello, ladies and gentlemen. My name is Divan Mathena.
और मैं JCO जमादार सूजा राम का रोल प्ले कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ, इस पिक्चर से मुझे एक नया परिवार मिल गया है, ये मेरे भाई मस्त। All my brothers are here on stage today. It's been an absolute fabulous experience. You get very few chances in life to be part of such kind of films and such kind of films being made. So thank you, Ritesh. Thank you, Farhan. Thank you to the entire team. Jalsa. Amazing, amazing work as always. Thank you so much. I'm overwhelmed. And thank you for letting me be a part of this. I love all the music. Now I have 3 anthems. I have Chak De, I have Dangal, and I have 120 Bahadur. मेरा नाम धनवीर सिंह है और मैं श्री हरिराम सिंह जी का किरदार निभा रहा हूँ। इस फिल्म से पहले भी, इस फिल्म के बाद भी किरदार आते रहेंगे लाइफ में, एक एक्टर की लाइफ में आते रहते हैं। और श्री हरिराम सिंह जी का किरदार एक बैज की तरह मैं चमका के चलूंगा अपने सीने पे हमेशा। नमस्कार, मैं अजिंक्य देव और मैं इस फिल्म में ब्रिगेडियर का रोल निभा रहा हूँ। ये फिल्म वाकई में दिल के बहुत करीब रहेगी। बहुत सारी फिल्में हो गई, बहुत होंगी भी, लेकिन ये फिल्म बहुत खास रहेगी बिकॉज ऑफ द वे इट वाज शॉट, बिकॉज ऑफ द पीपल इन्वॉल्व्ड। एंड थैंक यू द एंटायर एक्सेल टीम, थैंक यू रेजी, थैंक यू, एंड टू बी हियर ऑन द डायस विद जावेद साहब इज रियली एन ऑनर। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। नमस्ते, मेरा नाम दिग्विजय है और मैं जमादार जी का किरदार निभा रहा हूँ and I'm blessed and honored to be part of this team. हेलो, नमस्ते, मेरा नाम है देवेंद्र अग्रवाल और जो मैं कैरेक्टर कर रहा हूँ उस कैरेक्टर को उसके दोस्त प्यार से बैंगन करके बुलाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मेरा नाम अंकित सिवाच है और जो किरदार मैं निभा रहा हूँ उनका नाम है रामलाल यादव और वो अपने सभी साथियों के साथ पीछे नहीं हटे। इस टीजर में जो कहानी हम देख रहे हैं, ताज्जुब होता है कि 1962 की वो जंग, रेजांगला की एक कहानी, इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता था और ये फिल्म जो है उस कहानी को सामने लेकर रही है। स्पष्ट एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जिस रियल लाइफ हीरो को आप प्ले कर रहे हैं, अगर वो ना होते तो शायद ये कहानी हम तक ना पहुंचती। जी, ये बिल्कुल सही बात है और इस फिल्म के जरिए मुझे नरेटर बनने का भी मौका मिला इस फिल्म में, एंड आई थैंक माय स्टार्स एवरी डे फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। और बस यही कहूँगा कि जो ये ट्रिब्यूट है हमारी फिल्म 120 बहादुर, उन जवानों की करेज को, उनके हार न मानने वाले एटीट्यूड को, उनकी हिम्मत को, उसका पार्ट बनने के लिए मैं बहुत ही लकी फील कर रहा हूँ। Thank you so much. It's already turned into my favorite song. I'm sure that this is going to resonate with everyone. Javed Saab, Farhan, Amit, रेज़ांगला 1962। अब वो कहानी दुनिया तक पहुंचने वाली है। आज ऑडियंस जो देखेगी उस फिल्म को, एक अंश यहाँ पे बैठा हुआ है, 21 तारीख को पूरी दुनिया देखेगी। इस पल में आप लोग क्या महसूस कर रहे हैं? जावेद साहब, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। थैंक यू। देखिए, देयर इज अ सेइंग दैट ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन, और सही बात है। फिक्शन में ये कॉम्प्लेक्स होता है कि मैं सच नहीं हूँ, तो वो अपने आप को जस्टिफिकेशन देता है, जस्टिफिकेशन तो रीजनेबल हो जाता है थोड़ा सा। ट्रूथ हैज नो सच फियर, ट्रूथ कैन बी एज स्ट्रेंज एज पॉसिबल बिकॉज इट रिमेन्स ट्रूथ। ये कहानी जो है, ये अगर सच्ची ना होती तो कोई नहीं मानता। ये कहानी इतनी अजीब है कि द ओनली रीजन यू हैव टू बिलीव इट दैट इट इज रियली ट्रू, ये राइटर नहीं लिख सकते थे, इसलिए कि उन्होंने लिख के गए होते किसी बात को, कहते ऐसा थोड़ी हो सकता भाई, तुम क्या लिख के लाए हो, मगर ये सच है। और जब आप इस फिल्म को देखेंगे एंड व्हेन यू गो टुवर्ड देन यू विल बी सरप्राइज्ड कि ये कैसे हुआ। बिल्कुल सही बात है, जो इनका कैरेक्टर है, अगर वो ना होता तो हमें किसी को दुनिया में मालूम ही नहीं होता कि क्या, और ये कैसे छुपा, कैसे गायब हुआ, कैसे सामने आया, इट्स अनबिलीवेबल। The only reason that you have to believe it under the sun is that it really happened.
अमित, ये अपने भारत के इतिहास का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और टू फॉर मी एज अ म्यूजिशियन, एज अ कंपोजर, इस चैप्टर के साथ इन वट एवर वे जुड़ने के लिए एज अ कंपोजर, एज अ गाना बनाना, like the smallest part and like the very very tiniest part of it, be part of such a historical thing. It's a proud and absolutely मुझे बहुत गर्व है that I'm part of this cinema, this film, and I'm forever thankful that with Excel, this is my first film. We've always tried before to work in the past, but this is my first film. I'm glad that this is the film that I have debuted with Excel, and I hope it's not the first one. And not the last, sorry. And I'm absolutely thankful to you for having me on board. Thank you, Farhan sir, Rezi sir, and Ritesh sir, and everybody involved. I'm very, very grateful to be a part of this cinema. Thank you so much. Rezi, we've all gathered here to listen to the songs, but it's turned into such a visual experience. 17 more days, and the world will not only receive this film, it will become the audience's film. What are you feeling at this point? I'm very nervous. All right, ladies and gentlemen. Look at the man I'm working with. Look at my producer. Look at their body of work. It's only my second film. But I'm very proud to present this film, guys. So, yeah. And with a wonderful cast like this, and my crew there, holding out. It's a level love, and I want to put it out my way. So, thank you, sir. Thank you for being here. 21st November, Excel Entertainment and Trigger Happy Studios, 120 Bahadur. We have the cast and crew, so many who have already come to the stage once. I would like to invite them again. We have Salim, also Salim watching. Salim bhai, Sulaiman bhai, Javed, Ali, Ashish Kaur, Amjad, Nadeem, Amir. सब जो स्टेज पे आ चुके हैं एक बार प्लीज नहीं अभी हो गया देखिए दोस्तों ये वो टीम है जो इस दास्तान को सबके सामने ला रही है द टीम ऑफ 120 बहादुर प्लीज कैप्चर दिस मोमेंट फॉरएवर Wow. Ladies and gentlemen, once again, please put your hands together. Show them some love. Wait just a second. Don't leave. Don't leave. Don't leave. We have a surprise for you. क्योंकि वो दुनिया जिनके पास phones हैं, जो बाहर हैं, इस auditorium में नहीं है, they will watch it and they will try and search for the story. You have lived through these minutes that we have spent here at the Royal Opera House. आपने पक्का emotions feel किए. You would have felt something in your heart when you heard the song याद आते हैं. आपने हमारी चार्ली कंपनी को देखा, but exclusive for you sitting here, the official visuals you'll get to see in the film. Feel it once again, deeper of याद आते हैं. Good. I would request the cast, the crew, our musicians, everyone to take your seats. Just get everyone to experience याद आते हैं.
वो हो गया 9 मिनट बचे कनवा बजेगा कनवा बजेगा क्लोज करना पड़ेगा All right, folks, we ready? रेडी देखें मिलके